Hello students, today I am going to introduce about the next topic of oxygen family, that is chemical properties. Chemical properties. In chemical properties, first of all, I will discuss about the chemical reactivity. The reactivity of group 16 element, that is down the group, that will be decreases. Reactivity is decreases down the group. Oxygen is very highly reactive element. Okay, it reacts with almost all the compounds. The reaction of oxygen, that is highly exothermic. It is less reactive than the most reactive elements, halogens. Okay, now first is the reactivity with hydrogen. Reactivity with hydrogen. In this case, all the elements of group 16 that react with hydrogen and to form means metal, when react with hydrogen, then it will form H2M. Okay, metal hydride like this: H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO. ठीक है. Now, in all these hydrides, the central element of group 16, that is sp3 hybridized. सभी का जो central atom है वो sp3 hybridized है. The shape of these hydrides is angular or bent. Okay, angular होती है और bent shape होती है. And it will form just like this water molecules. ये इसकी bent shape है. इसके पास क्या है? दो lone pair of electrons हैं. Okay. और टेट्राहेड्रल, मतलब इसकी जो शेप है दैट शुड बी टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स शेप इज डिस्टॉर्टेड एंड इट्स शेप इज वी शेप और एंगुलर शेप. ओके, सो बॉन्ड एंगल इज, इसका जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री 5 डेज होता है. ओके, due to the greater lone pair repulsion, its bond angle is distorted. Okay, as we move down the group, the bond angle is decreases from H2O to H2TE. Okay, तो ये bond angle decrease हो जाता है. अब reason, what is the reason behind this? कि जो bond angle है that will be decreases down the group. Okay, तो reason क्या है बेटा इसका? कि as we move from top to bottom, ओके, मीन्स ऑक्सीजन से पोलिनियम की तरफ जाएंगे, तो इसमें क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम दैट इज ऑल्सो decreases. So the repulsion between the electron pair that is decreases, so the bond angle is also decreases. Okay, now next is point number 2, thermal stability. Thermal stability. In this case, thermal stability is also decreases down the group. H2O से और हम कहाँ जाते हैं? H2PO की तरफ जाते हैं, तो thermal stability decrease होती है. रीज़न क्या है? कि एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है सेंट्रल एटम का. तो अगर साइज बढ़ेगा, इफ साइज इंक्रीजेस, देन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस. तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ओके, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PO. ओके, सो द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PO. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर. पॉइंट नंबर 3, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर. जब हम क्या करते हैं? वाटर से H2PO की तरफ जाते हैं, पोलिनियम की तरफ जाते हैं, देन रिड्यूसिंग जो नेचर है दैट विल बी इंक्रीजेस. तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस. वाई? अब इसमें क्या रीज़न है बेटा? रिड्यूसिंग नेचर जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स आयन. क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, मीन्स हाइड्राइड आयन्स पे डिपेंड होता है. ओके, तो जो रिड्यूसिंग नेचर है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स. ठीक है,
ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है, लेस विल बी द रिड्यूसिंग पावर. इट मीन्स स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर. अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है इट मीन्स रिड्यूसिंग पावर इज लेस. सो ड्यू टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम with increase the reducing power. Okay, so this shows that the metal hydrogen bond strength that will be decreases, and the electronegativity of metal that is also decreases, and reducing nature increases. Okay, so this is the reason behind this. Again I will tell the reason. If greater the stability, less will be the reducing power. Due to decrease the stability from top to bottom, reducing power also increases. So this shows that the bond strength of MH bond that will be decreases, and the electronegativity of metal decreases, reducing nature increases. Okay, now next is acidic nature. Point number 4, that is acidic nature. The group 16 element hydrides that are weakly acidic in nature. ये कैसे होते हैं बेटा? weakly acidic in nature होते हैं. Okay, as we move from water to polonium H2PO, then इसमें रीज़न क्या है कि इसकी जो एसिडिक नेचर है दैट विल बी इंक्रीजेस. एसिडिक नेचर इंक्रीजेस because with increase the size of central atom, the bond length increases and bond dissociation energy decreases. Okay, तो जो bond cleavage होती है that become more and more easy, so the acidic strength of hydrides increases down the group. Okay, now point number 5, that is boiling point and melting point. Okay, बॉइलिंग पॉइंट मेन रीजन यही है. अब बेटा क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा विद इंक्रीज इन द साइज देन द वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. सो द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2PO. एक्सेप्शनल होता है यहाँ पे हमारा एक वाटर. अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट. ओके, रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. ओके, नाउ नेक्स्ट 6th point is volatility. Volatility is inversely proportional to the boiling point. If boiling point increases, then volatility also decreases. Okay, now one more question arises from here कि why water is a liquid but H2S is a gas. रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा वाटर के अंदर क्या है? वाटर के अंदर क्या है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, now next question is water has high boiling point. Why high boiling point? अब रीज़न यही बताया है. Why? Because of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. This is the reason. Okay, now the next topic is reactivity with halogen. इस केस में क्या होता है बेटा? These metals form the halides like monohalides, dihalides, trihalides. ठीक है, ये बनाते हैं टेट्राहैलाइड्स, हेक्साहैलाइड्स, ये बनते हैं. ओके, तो इस केस में क्या होता है हमारे जैसे M2X2, ओके, या फिर MX2, MX4,
MX6 इस टाइप के ये हैलाइड्स बनाते हैं। अब मोनोहैलाइड्स, जो मोनोहैलाइड्स होते हैं वो आपके क्या होता है, डाइमर होते हैं, डाइमेरिक नेचर के होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड डाईहैलाइड्स दैट आर, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। और इसमें एंगुलर स्ट्रक्चर बनता है विद 2 लोन पेयर, दिस इज sp3 बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज एंड एंगुलर स्ट्रक्चर विद 2 लोन पेयर, ओके, जैसे वाटर का था। नाउ वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस कि जो ऑक्सीजन है दैट विल फॉर्म OF2, इसको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फ्लोराइड। देखो, अब ऑक्सीजन विद फ्लोरीन दैट फॉर्म द फ्लोराइड्स while as the other halogens that form oxides. Why? अब यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ऑक्सीजन है जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है F2 के साथ, तो ये फ्लोराइड बनाता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है, ओके। बट जब अदर हैलोजेंस होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, अदर हैलोजेंस फॉर्म ऑक्साइड्स। वाई? अब रीज़न क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, बट सॉरी ऑक्सीजन फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये फ्लोराइड्स बनाते हैं, जबकि जो अदर हैलोजन होते हैं उनकी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, ठीक है। जो अदर हैलोजन्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी जो होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस एंड दिस विल फॉर्म द ऑक्साइड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टेट्राहैलाइड्स। इस केस में क्या होता है टेट्राहैलाइड्स में, इसकी जो शेप बनती है बेटा शीशा शेप बनती है, जैसे SF4 की होती है, और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जैसे हम करते हैं SF4। तो इसमें हम सेंट्रल एटम्स का बैलेंस लेते हैं, कितना होता है बेटा सेंट्रल एटम में, ऑक्सीजन के नीचे ही प्रेजेंट होता है ये सल्फर 6 प्लस ऑक्सीजन, फ्लोरीन में कितने होते हैं 7, 7 4 जार 28, दैट इज 34/8, दैट इज total is 5 means sp3d hybridization, 4 bond pair and 1 lone pair is present in this molecule. Then draw the structure of this. This is sulfur atom and these are having 1 lone pair, this one, and this is sulfur fluorine bond, 1 fluorine here, 1 here and 1 at the axial position, okay. 2 axial, 2 equatorial position are here and 1 lone pair is present here, okay. So this shape is Shisha shape and the hybridization is sp3d, okay. Now this SF4 molecule is a gas, okay. Now next is hexahalide, hexahalides। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे हम SF6 लेते हैं, SF6 में भी हमारी क्या शेप बनती है, तो सेम ऐसे ही बनेगी, ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप होती है, ये सल्फर है एंड दिस वन फ्लोरीन एटम इज अटैच हियर इन दिस मैनर, दिस वन एंड दिस वन, ओके। नाउ ये आपकी जो शेप है दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप है, ओके, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ओके। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इसमें क्या होता है बेटा, सल्फर जो होता है दैट विल बी रिएक्ट विद द फ्लोरीन एटम एंड आफ्टर हीटेड इट विल फॉर्म SF6।
ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस होती है, हाईली स्टेबल होता है। जो ये हैलाइड्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है बिकॉज द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज with increase in size of halogens. Okay, now next topic is reactivity with oxygen. Reactivity with oxygen. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 दैट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब कोई भी मेटल्स है या एलिमेंट है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल फॉर्म डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड टाइप की देते हैं। इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। ओके, नाउ इन केस ऑफ डाइऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है, जो SO2 होती है वो क्या है, गैस है, वाइल एज द ये गैस है, जबकि जो SeO2 है एंड TeO2 है दैट विल बी सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। तो इस केस में क्या होता है, जो टेलुरियम और सेलेनियम है इनमें क्या होता है, पॉलीमेरिक जिगजैग चेन स्ट्रक्चर बनता है। ड्यू टू दिस पॉलीमेरिक जिगजैग चेन स्ट्रक्चर लेस टेंडेंसी टू फॉर्म अ पी पाई बॉन्डिंग, जिसमें जो पी पाई लेस टेंडेंसी होती है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई बॉन्डिंग। ओके, ये रीजन आएगा इसका। एंड दिस SO2 मॉलिक्यूल जो होता है ये बैंड शेप का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है मैं ऐसे बना देती हूँ, यहाँ पे इस पे लॉन पेयर होता है और यहाँ पे 2 आपके इस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है। ओके, पी पाई यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग बनती है। ओके, तो इसकी जो होती है ये पी पाई बॉन्डिंग शो करता है आराम से, बट सिलीनियम और टेलुरियम में क्या होता है, P और D आ जाते हैं, तो इसकी जो टेंडेंसी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की कम हो जाती है और पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज SO2. SO2. Now next topic is sulfur dioxide. Preparation. In preparation, the sulfur is react with oxygen and it will form SO2. Okay, now this is SO3 2 minus that react with the 2H plus ions and it will form a water plus SO2. This is the lab method, yeah, lab preparation. Okay, now in industrial preparation we can also prepare the SO2, FeS2 that react with oxygen and it will form a ferric oxide and it will form SO2 gas. This is the industrial preparation. Now balance the equation, Fe2, this is 4, this is multiply by 2, then 4 to ja 8 sulfide ion is present here, then it is multiplied by 8 and the oxygen is 3 to ja 6, 8 to ja 16 plus 6 that is 22, 11. So 11 multiply 2 that is 22. Okay, so this is balance. Now next is properties. ये क्या होती है बेटा, कलरलेस गैस होती है एंड इसकी जो स्मेल होती है पंजेंट स्मेल होती है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट लिक्विफाई एट द रूम टेम्परेचर। ओके, नाउ व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ SO2? सपोज दिस SO2 then pass through the base NaOH, then it will form Na2SO3 plus water. Okay, this will form. Now this Na2SO3 that react with water plus SO2 then it will form NaHSO3. Okay, this will form. This SO2 gas pass through the Cl2 in presence of charcoal, then it will form SO2Cl2.
and this SO2 gas that will pass through the air, yeah, in presence of air, in presence of V2O5 catalyst, then it will form SO3. So this moist SO2 that behaves as a reducing agent, and it convert the Fe+3 ions into the Fe+2 ions and decolorize the acidified KMnO4. So this is the test for SO2. अब टेस्ट क्या है बेटा, टेस्ट फॉर SO2. इसमें क्या होता है, जो Fe+3 आयन होता है दैट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन एंड इट विल फॉर्म Fe+2 plus SO4 2 minus plus H positive ions is released here. Now balance the equation. This one 2 times and this one is 4 times. Okay, so this is the main reaction. Now what are the uses of SO2? SO2 is used in the refining petroleum and sugar. ठीक है, refining of petroleum and sugar. It is used as a bleaching wool and silk. Okay, it is used as a disinfectant and preservatives. Okay, इसके लिए भी disinfectant क्या होता है, which kill the microorganisms or stop the growth of microorganisms. Okay, so liquid जो SO2 होता है that is used as a solvent in most of the organic and inorganic chemicals. Okay, now how SO2 act as a bleaching agent. देखो बेटा, bleaching agent या एक्शन कह सकते हो आप. इस केस में क्या होता है, जो SO2 होता है ना दैट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दैट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट. इसका ब्लीचिंग एजेंट का नेचर ही क्यों शो करता है, ड्यू टू द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है SO2 का, इसकी वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है. दिस SO2 दैट रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल फॉर्म H2SO4. ओके, H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन. इसमें क्या होता है बेटा, जो कलर्ड मैटर होता है, कलर्ड मैटर प्लस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म अ कलरलेस मैटर. ये क्या बनाता है, कलरलेस मैटर फॉर्म करता है, ये बनता है. तो जो ब्लीचिंग होता है वो एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है, और ब्लीच्ड जो मैटर होता है जब उसको हम एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वो रिगेन कर लेता है अपने कलर को ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से. ओके, लिक्विड SO2 को हम जो है रेफ्रिजरेंट में भी यूज़ करते हैं. ओके, तो ये इसकी यूजेस थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज oxy acids of sulfur. Oxy acids of sulfur. देखो बेटा, sulfur has a maximum tendency to form the oxo acids like first sulfurous acid H2SO3. sulfurous acid, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, टेट्राहेड्रली बनाएंगे. This one having one OH group here, one OH group here, and this one having double bond oxygen, and this one be lone pair. Okay, now this is diabasic. Okay, next is point number 2, that is sulfuric acid H2SO4. this sulfur having 2 oxygen atom here and 2 oxygen atoms attached with here OH group. So this is sulfuric acid. Now next is thiosulfuric acid. Point number 3, H2S2O3. इसमें क्या होता है बेटा, this sulfur that is linked with another sulfur atom and one oxygen atom, and this one OH group is here and this OH group is here. This is thiosulfuric acid. Okay, why the word thio is used, because sulfur is attached with the another sulfur atom. Okay, by the help of double bond. Now next is peroxo
मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें होता है बेटा पॉइंट नंबर 4, दिस इज H2SO5, इट्स नेम, कॉमन नेम क्या है इसका, कैरो एसिड्स, क्या नाम है, कैरो एसिड, ओके, ये इसका कॉमन नेम। इस केस में क्या होता है बेटा, देखो ये सल्फर है, ये आपका अटैच होता है इस ऑक्सीजन से, और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, ओके, दिस इज अटैच्ड विद O एंड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 5, अब इसमें क्या होता है, कैरो एसिड्स क्यों है, देखो ये वाला ऑक्सीजन और OH के साथ अटैच है, ठीक है, तो इसका नाम दिया पर ऑक्सो, क्या नाम दिया है, पर ऑक्सो, ओके। नाउ नेक्स्ट इज H2S2O8, ओके। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इसका नाम क्या, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्शल एसिड्स, क्या होता है, मार्शल्स एसिड इसका नाम होता है, ओके, मार्शल एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें भी ऑक्सो ग्रुप है लेकिन सल्फर के साथ अटैच है, तो बेटा यहाँ पे जो है आपकी दो ऑक्सीजन ऐसे लिंक होंगी, वन सल्फर इज अटैच्ड विद this oxygen atom and this one OH group is attached here. Same process in this case of another sulfur, this is OH, okay. So this linkage is peroxide या peroxo linkage, okay. Now next is point number 6, H2S2O6, this is dithionic acid, डाईथायोनिक एसिड। यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे ये सल्फर है, ये यहाँ पे अटैच होता है दूसरे सल्फर से, दिस वन ऑक्सीजन एंड दिस वन ऑक्सीजन, दिस वन OH ग्रुप इज अटैच हियर, ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज, यहाँ पे भी OH ग्रुप आ जाएगा। डाई मीन्स दो, थायोनिक मीन्स सल्फर, सल्फर अटैच होना, ठीक है, उसको थायो ग्रुप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7, इसमें देखो बेटा H2S2O7, ओके, ये किससे बना होता है बेटा, देखो इसका नाम होता है ओलियम, क्या नाम है, ओलियम, और इसका दूसरा नाम भी होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो इस केस में बेटा क्या होता है हमारे पास कि जो एक तो H2S2O4 होता है और इसमें SO3 और ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों से बनता है ये। तो देखो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पायरो है, ठीक है, तो इसमें पहले सल्फर अटैच करेंगे, सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है बेटा, 6 है, ठीक है, 6 बॉन्ड बनाता है ये। तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है बेटा, ये ऑक्सीजन है, और दिस वन अगेन दिस सल्फर इज अटैच है, दिस वन ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म अ OH ग्रुप। देखो 1 2 2 सल्फर एटम, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, ओके। सो दिस इज ओलियम एंड इसमें बेटा ये जो लिंकेज होती है इसको पायरो लिंकेज बोलते हैं, ठीक है, पायरो लिंकेज, और दिस इज अ डाई बेसिक बिकॉज 2 OH group is present here, okay. So all these are the oxo acids of sulfur. इनमें जो मेन है बेटा, एक तो ओलियम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कैरो एसिड्स, इसका स्ट्रक्चर जो है आपके पेपर में आ सकता है, मार्शल एसिड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ one more question is arise from this family कि why is Ka2 value that is less than Ka1 value for H2SO4 in water? This is important question बेटा। Now what is the reason? अब आंसर क्या है कि जो H2SO4 है that is very strong एसिड होता है वाटर के अंदर, ठीक है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर एंड
व्हेन आयनाइज, जब ये इसको आयनाइज करते हैं तो इट फर्स्ट आयनाइजेशन पे ये H3O पॉजिटिव प्लस H2SO4 HSO4 नेगेटिव ये प्रोड्यूस करता है। तो जब आयनाइजेशन होती है HSO4 की टू H3O पॉजिटिव and SO4 to negative is very very small. Okay, means the ionization of HSO4 negative to H3O positive and SO4 to negative is very very small. ठीक है, very very small होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती है, लेस होती है। ओके, नाउ दीज आर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।